শনিবার নদিয়ার নবদ্বীপ শহর থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জয়প্রকাশ নাড্ডা। এদিন দুপুর ৩টেয় নবদ্বীপ রয়্যাল ক্লাবের মাঠে হেলিকপ্টার নামে জেপি নাড্ডার। সেখান থেকে নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দিরে যান তিনি। সেখান থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সাথে তিনি চটির মাঠের সভাস্থলে আসেন। এরপর মঞ্চে তিনি বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে নাড্ডা বিজেপির পরিবর্তন রথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সূচনা করেন এবং রথের উপরে চেপে নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় কিছুদিন যান তিনি। এরপর সেখান থেকে ফিরে হেলিকপ্টার চেপে নাকাশিপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। সবাইকে বলছি বড় মালা দিয়ে আর নাড্ডাজি দিলীপ দা এবং আর সবাইকে বরণ করার জন্য বড় মালা তাড়াতাড়ি যুব মোর্চার সকলকে আমি অনুরোধ করছি। আজকে তারা 5টি মোর্চার সভাপতি এবং উত্তর ও দক্ষিণ এই নদিয়া নগরের 2 সভাপতি এসে 11 জন মিলে নাড্ডাজি সহ সবাইকে বরণ করবেন। এবার মালাটা সরিয়ে নাও। এবার আমার বিজেপি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জয় শ্রীরাম, জয় নিতাই। এই পবিত্র ভূমির সমস্ত সুধী নাগরিক বৃন্দ, মা বোনেরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার প্রণাম। আর যাকে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রসাদ নাড্ডা, তিনি আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। প্রত্যেক মাসে বারে বারে উনি এখানে আসছেন আমাদের লড়াইতে সাথী হয়ে। তার আশীর্বাদে যদি বাংলায় আমরা সরকার গঠন করতে পারি, তার জন্য সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা মালদা থেকে আসছি, এখন সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়ে মালদা খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। সম্মাননীয় সভাপতি 1000 জনের সঙ্গে মাটিতে বসে খিচুড়ি প্রসাদ নিয়েছেন। আর তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মভূমিতে তার জন্মস্থান দর্শন করে আপনাদের সামনে পার্টির বক্তব্য রাখার জন্য এসেছেন। তার এই যে আমাদের প্রতি ভালোবাসা, আশীর্বাদ, তার জন্য আমি মাননীয় নাড্ডাজিকে বারবার নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় কৈলাস যে 6 বছর ধরে আমাদের অভিভাবক হিসাবে এখানে পার্টির কার্যকর্তাদের দিশা দর্শন করছেন। এছাড়া আমাদের বরিষ্ঠ নেতা মাননীয় মুকুলদা, অতি আমাদের প্রদেশের একজন সহ অবজারভার মাননীয় অমিত মালবীয়, মাননীয় রাজু ব্যানার্জি সহসভাপতি প্রদেশের, জেলা সভাপতি আসুদা, আমাদের প্রদেশের বরিষ্ঠ নেতা প্রাক্তন সভাপতি সর্বভারতীয় প্রাক্তন সম্পাদক সম্মাননীয় রাহুল দা, মাননীয় বালুদা ডক্টর বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী যিনি সহসভাপতি, আমাদের মাননীয় জনপ্রিয় সাংসদ শ্রী জগন্নাথ সরকার মাস্টারমশাই, এবং অতি সম্প্রতি যিনি পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনে নিজের যৌবন শক্তি লাগাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন শ্রী রাজীব ব্যানার্জি। এছাড়া পিছনে বহু কার্যকর্তা উপস্থিত আছেন, সবার নাম বলার সময় নাই। আমি সবাইকে স্বাগত করছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বোপরি আপনারা যে বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সফল করেছেন তার জন্য আবার আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বক্তা নই, আমি খালি মাননীয় নাড্ডাজির সঙ্গে এসেছি এই যে বিশাল জনসমাবেশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এইটা বলার জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের এই পরিবর্তনে সম্পূর্ণভাবে সহভাগী, এবং এই যে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি তার ফলে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে রাস্তায় পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। পুরো নবদ্বীপ শহর ঘুরে এলাম, বাড়ির মধ্যে
একটা লোক নেই, সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, জয় শ্রীরাম বলছেন। আপনাদের এই উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরিশ্রম এর সম্পূর্ণ সম্মান করে আমরা বাংলায় পরিবর্তন করব। ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ লক্ষ লক্ষ কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করছেন বাংলায় সুশাসন আনার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তার জন্য 135 জন কর্মীকে জীবন বলিদান দিতে হচ্ছে, তাদের হিংসার শিকার হতে হচ্ছে। 29,000 কেস আমাদের উপরে চলছে, হাজার হাজার কর্মী পুলিশের ভয়ে বাড়ি থাকতে পারছেন না, হাজার হাজার কর্মী আজকে জেলের মধ্যে আছেন, তার পরিবারকে দেখার কেউ নেই, পার্টি তাদের দায়িত্ব নিয়েছে। তাই বন্ধুগণ, আপনাদের এই যে পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, এই তপস্যা, তিতিক্ষা, এটাকে আমরা ব্যর্থ দিতে হবে না। আমি রাজ্য সভাপতি হিসাবে বলছি, আমরা এই সম্পূর্ণ করবে। তার জন্য যত বলিদান লাগে বাংলার পরিবর্তন করে বাংলায় সুশাসন আনবো, মোদী রাজ আনবো। কেন্দ্রের সরকার আমাদের সর্বভারতীয় যশস্বী সভাপতি এবং নেতা, আমার তো যুব মোর্চার সময় উনি যুব মোর্চারও নেতা ছিলেন, সেই জেপি নাড্ডাজি সাংসদ, উনি আপনাদের সামনে এবার কিছু বক্তব্য রাখবেন। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल राय जी, मंच पर विराजमान भाई राजीव बैनर्जी जी, हमारे सांसद जगन्नाथ सरकार जी, हमारे सांसद सुकंतो मजुमदार जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी सबाई के नमस्कार। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर आया हूँ। आज मैं बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आया हूँ, हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पर, पवित्र धरती पर आया हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती पर आया हूँ, हमारे श्री अरबिंदो की धरती पर आया हूँ और हमारे एकता के सूत्र में बांधने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आया हूँ। ऐसी पवित्र भूमि को, ऐसी पवित्र धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। मित्रों, এটা परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होय छे। यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन है। आपको मालूम है, 10 साल पहले माँ, माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता दी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा और जहां तक माटी का सवाल है, उसकी भी इज्जत नहीं की गई, की भी रक्षा नहीं की गई। ये मां, माटी, मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इसको लेकर इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया और इस यहाँ आया क्या? तानाशाही। कैसी तानाशाही? आपको मालूम है, प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, प्रशासन को साथ साथ पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हुआ और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। और हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर
राजीव बंदोपाध्याय, टोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, ये मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान हमने चलाया था। 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहमौज किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग जानते हैं ये धरती। जब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की। आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, ये हम सब लोग जानते हैं। और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। आज मुझे खुशी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। अब एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। आज उसका प्रारंभ इधर नवद्वीप से हो रहा है, नवद्वीपों के समूह के नगर से हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग कृत संकल्प हैं। मित्रों, हम जानते हैं मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या क्या किया। जब भी बारी आई है बंगाल को सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन ममता चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होबे ना होबे ना होबे ना। कहनो होबे ना, मई महीने के बाद सभी कुछ होबे होबे होबे। इस बात को हमको समझना चाहिए। आयुष्मान भारत होबे ना। अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज सालाना। गरीब आदमी, कौन है गरीब आदमी? रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ये गरीब आदमी। इनके बारे में चिंता करने की बात थी। इस चिंता को जब देखने की बारी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का प्रयास किया। यहां भी 80 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता, लेकिन ममता जी ने नहीं है, ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही। अब ममता जाएगी, अड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक लगभग 70 लाख
किसानों को ये पैसा मिल जाता, कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना था 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना, यहां चाहिए नहीं, यहां होगा नहीं। अब ममता जी जाएंगी और सीधे सीधे 70 लाख किसानों को उनका अपना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी और उनके विकास में हम योगदान करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना होगा। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। अभी ममता जी जहां मेरी रैली होती है वहां दोनों पीसी और भाईपो दोनों के पोस्टर दोनों तरफ लग जाते हैं, नमस्ते करते हुए मेरा स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जहां जाओ मेरे पोस्टर हटा देंगे, मेरे पोस्टर हटा देंगे और एक तरफ पीसी एक तरफ भाईपो, स्वागतम स्वागतम। और जब मैं जाने लगता हूं तो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। ये यहां का हालचाल होता है मित्रों। और आपको मालूम है यहां की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करती है। ये परिवर्तन की बात है। ये अरविंदो की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये पुण्य लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहाँ की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। यह हमको समझना चाहिए। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाती हैं वह बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। वो बताता है कि आपने बंगाल की संस्कृति का निरादर किया। बंगाल की संस्कृति की रक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। इतने साल आप कांग्रेस पार्टी में रही, इतने साल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में और यहां राज किया, कहां भूल गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को? और अब क्यों याद आ रहा है? अब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, सभी अभियानों को अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए की सरकार में देश को एक लंबी छलांग लगा करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। बंगाल उसमें पिछड़ रहा है। बंगाल क्यों पिछड़ रहा है? बंगाल इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि बंगाल को चलाने वाला नेतृत्व इन चीजों के प्रति प्यार नहीं रखता है। आज ममता जी मुख्यमंत्री है और वो महिला है और सबसे ज्यादा महिलाओं की ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं दे रही है। अगर रेप केसेस देखें, बलात्कार के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं की इज्जत ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और यही परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान में पहले 1,000 करोड़ रुपए,
और बाद में 1700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए दिए। एटा हिसाब होए ना, जानी ना ये किसके पॉकेट में गया? एटा कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी, ये किसके पॉकेट में गया? और आप देखिए हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से इसकी ऑडिटिंग कराओ। मोदी जी का पैसा मोदी जी ने दिया बंगाल की जनता के लिए, अम्फान के रिलीफ के लिए, खा गए, अनाज खा गए, तिरपाल चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कट मनी ले लिया, हिसाब किताब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। यानी प्रदेश का नेता ईमानदारी लाने के बजाय बेईमानी को प्रश्रय दे रहा है। मते ममता जी ए तो भय केनो, इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है? क्या चोरी की है? क्या खाया है? आप दुख के साथ कहना पड़ता है विकास के नाम पर सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टिकरण, मैं फिर बोलूंगा टोलाबाजी, तुष्टिकरण, ये क्या चल रहा है? कट मनी, यही कल्चर हो गया यहां का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को कोरोना के दौरान 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया 80 करोड़ की जनता को। लेकिन जब बंगाल की बात आई तो चावल कहां मिला? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में मिला। दाल कहां मिली? तो टीएमसी के घर के कार्यकर्ताओं के घर में मिली। ये क्या है? और ममता जी बोल रही है हमारा शासन, हमारा शासन। अपनी शासन जाएगा, आपका शासन जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, बंगाल मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए और यही परिवर्तन यात्रा है। मुझे समझ में नहीं आता, हमने नारा नहीं लगाया, लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम का। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है? क्या अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला होएगा चाहिए, इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, ये बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। भारत की संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, राजनीति के कारण वोट के खातिर अपने जमीर को भी नीचे लगा देंगे। ये इनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है, अपने कॉन्शियंस को भी मार देंगे। ये इनकी स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईस्ट कॉरिडोर खड़गपुर विजयवाड़ा इसके बनाने का काम शुरू किया है। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसावल और खड़गपुर और दानपुरी को जोड़ने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से पेटूघाट फिशिंग हार्बर को पूरी की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी तरीके से 1000 करोड़ रुपए बंगाल के टी गार्डन्स की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको बढ़ाने के लिए देने का काम किया है। ये हमको समझना चाहिए। हमारी ममता दीदी की आदत है, अपना तो कुछ है नहीं लेकिन चीटिंग में भी आगे रहती है। चीटिंग में भी कैसे? हमारा स्वच्छ भारत, हमारा मोदी जी का पैसा एखाने बंगाल निर्मल बांग्ला, नाम बदल दिया, सिर्फ नाम बदल दिया, काम मोदी जी का, नाम ममता का। ये सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसको बना दिया बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी बना दिया। ये योजनाओं का नाम बदल करने से ममता जी, आप बंगाल की जनता को आगे नहीं जीत सकती हैं। बंगाल की जनता ने अपने दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी जी को बैठा लिया है। कमल खिलेगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
मित्रों, मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, कोई विरोध में बोले, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, फिर चाहे वो कोई एडवोकेट हो, उसको अंदर डाल देने का काम ममता जी ने पकड़ा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस किसी ने भी ममता जी का क्रिटिसिज्म किया, उसको अंदर डालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस तरीके के काम को शुरू किया है। अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें तो वह भी जिस तरीके से ममता जी के राज में बढ़ा है, वो हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं आप सबको एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम सब लोग इस कोशिश को करें कि यहां पर भारतीय जनता, और कोशिश नहीं, मुझे ये जनता दिख रही है, ये साफ बता रही है कि आपने तय कर लिया है, परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका है। और मैं एक बात और कहूंगा कि पीसी भाइपो की सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये सत्ता बनाए रखने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि और नहीं अन्याय, अब और अन्याय नहीं सहेंगे और हमको आगे बढ़ना है, इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चुनाव में बंगाली और बाहरी का नारा लगाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की कल्चर की रक्षा बंगाल का नेतृत्व करेगा और अच्छे से करेगा, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दूंगा। उसी तरीके से ये परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। पीसी भाइपो और कोई चाइना, इनको आपने भेजना है और यहां प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए हमको खड़ा करना है। ये आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन हमारा नारा एक ही होना चाहिए, आर नहीं अन्याय, अन्याय, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। उसी तरीके से ये गलत आंकड़े दे करके भी लोगों को हर एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इनको पहचाने, जाने और परिवर्तन में अपना योगदान करें। और मैं जानता हूं कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव-गांव, घर-घर, हर जगह जाकर के हमको अपनी आवाज रखनी है। मैं आज अभी चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मस्थली पर जाने का वहां उनको नमन करने के लिए गया था। रास्ते में जिस तरीके का मेरा स्वागत हुआ, वो बताता है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन लाना तय कर दिया है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। बात कहूंगा, चाल चोर के तिरपाल चोर के, राशन चोर के, गोरू चोर के, देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन जनता ने कहा। ये जनता की आवाज है। इनको बताना पड़ेगा कि ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको बंगाल की जनता ने नमस्ते कह दिया है। परिवर्तन आएगा, आप सब लोगों के सहयोग से हम इस परिवर्तन को लेकर के चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इस चुनाव में बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के यहाँ भी विकास होगा। और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जिनको यहाँ रुकावट बनी है, वो रुकावट हटेगी, विकास होगा, सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस परिवर्तन यात्रा में जुड़े, यही मेरा निवेदन है। 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। अगले 2-3 दिनों बाद मैं फिर आऊंगा, अगली परिवर्तन यात्रा को भी प्रारंभ करूंगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वह भी 2 यात्राओं का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यहाँ बंगाल में एक जिले से होते हुए परिवर्तन यात्रा निकलेगी, उसका हम सहयोग करें, समर्थन करें। बंगाल में जो नई हवा
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी को नमस्कार करने के लिए आतुर है, उसका हम समर्थन करें, उसको हम ताकत प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। আমাদের সম্মানীয় যশস্বী সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি, সম্মানীয় ডক্টর জেপি নাড্ডা জিকে অনুরোধ করব একটু অনুগ্রহ করে শুনবেন। নাকাশিপাড়া বেতুয়াডুঙ্গরি থেকে সুভাষিস যে তার পার্স হারিয়ে গেছে, যেখানে রথ চলছিল ঠিক সেখান থেকে তার পার্সটি যদি কেউ পেয়ে থাকেন অনুগ্রহ রথের কাছে একটি আমার পুরনো জায়গা, দীর্ঘদিন পুরনো দলের থেকে অনেকবার এসেছি, আমি নদীয়ার দায়িত্বে ছিলাম। এখন আরও ভালো লাগছে, কারণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। কি আশা করছেন নবদ্বীপে কীরকম হবে নির্বাচন? পুরো দেখবেন পুরো পরিবর্তনের ঝড়ে সব ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাবে।